بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب طلبا کی توجہ طلب ہے. اس میں غیر متمکن کی ہم 8 قسم ہے وہ پڑھنے لگے ہیں. سب سے پہلی قسم مضمرات ہے. مضمرات یہ جمع ہے ضمیر کا. ضمیر وہ اسم ہے جو اسم ظاہر کی جگہ بولی جائے اور حاضر غائب متکلم پر دلالت کرے. مضمرات یعنی ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل. نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل. نمبر 3 ضمیر منصوب متصل. نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل. نمبر 5 ضمیر مجرور متصل. ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ترکیب میں مرفوع یعنی مسند الیہ ہے فاعل بنے. مسند الیہ ہے فاعل بنے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل. اور ضمیر مرفوع اور یہ کل 14 ضمائر ہے. ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اور ضمیر مرفوع منفصل یہ وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور ترکیب میں مبتدا یا خبر بنے. اور یہ کل 14 ضمائر ہیں. انا نحن انت انتم انتم انت انتم انتن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. یہ 14 ضمائر ہیں. اور ضمیر منصوب متصل یہ ترکیب میں مبتدا یا خبر بنتا ہے. یہ ضمیر یہ اپنے عامل سے دور ہوتا ہے. عامل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا. ہم جب پڑھتے ہیں نا انا ضربتو یا ضربتو انا زیدن یا انتا غلام بکرن انتا کلیم اللہ انتم طلابن تو یہ الگ لکھا ہوا ہوتا ہے. فعل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا اپنے عامل کے ساتھ. اور ضمیر منصوب متصل یہ وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو متصل ہو اور ترکیب میں مفعول بہی بنے. اور یہ کل 14 ضمائر ہے. ضربنی ضربنا ضربک ضربکما ضربکم ضربک ضربکما ضربکن ضربہ ضربہما ضربہم ضربہا ضربہما ضربہن. ضمیر منصوب منفصل یہ وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو اور ترکیب میں مفعول بہی بنے. اور یہ کل 14 ضمائر ہے. ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. اچھا ضمیر مجرور متصل یہ وہ ضمیر ہے جس پر حرف جر داخل ہو اور ترکیب میں مجرور بنے. اچھا پھر آگے جو ضمیر مجرور متصل ہے اس کی 2 قسم ہیں. نمبر 1 ضمیر مجرور متصل بالاضافت اور نمبر 2 ضمیر مجرور متصل بحرف جر. ضمیر مجرور متصل بالاضافت وہ ضمیر ہے جس کی طرف اسم مضاف ہو اور ترکیب میں مجرور مضاف الیہ بنے جیسے غلامی غلامنا غلاموں کا غلامکما غلامکم وغیرہ. اور ضمیر مجرور متصل بحرف جر وہ ضمیر ہے جس پر حرف جر داخل ہو اور ضمیر مجرور متصل کی کل 14 ضمائر ہے. لی لنا لک لکما لکم لکے لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن. یہ ترتیب ہے اس کی. اب آگے ضمیر کی پہچان ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ پہلے یاد رکھیں کہ ضمیر کی تعریف کو یاد رکھے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم ظاہر کی جگہ بولا جائے چاہے وہ متکلم ہو یا حاضر ہو یا غائب جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو. ضمیر کی پھر میں نے بتایا کہ 2 قسمیں ہیں ایک متصل ایک منفصل. اب جو متصل ہے ان کی 3 قسمیں مرفوع متصل منصوب متصل مجرور متصل. پھر منفصل کی 2 قسمیں مرفوع منفصل منصوب منفصل. یہ میں نے دوبارہ خلاصہ بتا دیا. اب یاد رکھیں کہ ضمیر مجرور منفصل ہم نے بتایا کہ ضمیر مجرور متصل ضمیر مجرور منفصل اس لیے نہیں آتی کہ منفصل اپنے عامل سے جدا بھی ہو سکتا ہے اور مقدم بھی اور مجرور کا اپنے جر سے جدا ہونا جائز نہیں ہے. اچھا
अब आगे कहते हैं कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल की दो किस्में हैं, एक मुस्ततर और एक बारिज। मुस्ततर वो ज़मीर है जो पोशीदा हो और उस पर तलफ़ुज़ ना किया जा सकता हो, जैसे यानी जबान से ना बोला जा सकता हो, जैसे ज़रबा, इसमें हुआ ज़मीर पोशीदा है, उस पर हम तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और ज़रबत, इसका अंदर हिया ज़मीर है, इस पर हम तलफ़ुज़ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। नंबर दो बारिज, जो जाहिर हो और उस पर तलफ़ुज़ किया जा सकता हो, यानी जबान से बोला जा सकता हो, जैसे ज़रबता, ज़रबतुमा वगैरह। यहां पर एक और फायदा याद रखें कि सिर्फ ज़मीर मरफू मुस्ततर हो सकती है। मुस्ततर, मुस्ततर का मकसद है पोशीदा, सतर से है, पोशीदगी से है, पर्दे से है। सिर्फ सिर्फ ज़मीर मरफू मुस्ततर हो सकती है। फिर मुस्ततर की दो किस्में, वाजिबुल इस्तितार है और जायजुल इस्तितार है। वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर है जो हमेशा के लिए फेल में छुपा हुआ हो, यानी मुस्ततर हो और उस फेल का फाइल इसमें जाहिर नहीं आ सकता हो, जैसे फिल मुजारे के वाहिद मुतकल्लिम, जैसे अजरबो, अंसरो वगैरह। और फिल मुजारे के जमा मुतकल्लिम, जैसे नजरबो, नंसरो वगैरह। और फिल मुजारे का वाहिद मुजक्कर हाजिर, जैसे तजरबो, तंसरो वगैरह। और जायजुल इस्तितार वो जमीर है जो कभी मुस्ततर यानी छुपा हुआ हो और कभी छुपा हुआ ना हो, बल्कि इसमें जाहिर हो। वो कौन है? वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, चाहे फिल माजी मारूफ या फिल मुजारे मारूफ हो। और तमाम अस्माए मुश्तकात में जमीर जायजुल इस्तितार होता है, यानी कभी जमीर अंदर छुपा हुआ होगा, वही इसम फाइल होगा, वही इसमें फाइल होगा। तो ये है जमीर के हवाले से थोड़ा बहुत बहस जो आप हजरात के साथ शेयर कर लिया। अच्छा अब दूसरी किस्म जो है, दूसरी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की पहली किस्म कौन सी थी मौलवी साहब? बोले जरा जल्दी से। मुजमरात। मुजमरात। मुजमिरात उस्ताद। मुजमर हाँ, मुजमेरात नहीं मुजमिरात। होता, मुजमरात। ये खुद छुपा हुआ होते हैं। मुजमेरात करेंगे तो छुपाने वाला, ये खुद छुपाता नहीं है, ये खुद छुपा हुआ होता है, मुजमरात। अच्छा, पहली किस्म मुजमरात। मुजमरात जमा है जमीर का, जमीर की 5 किस्में हैं जो मैंने बता दी। बस इतना पता होना चाहिए कि जमीर की 5 किस्में हैं। दूसरे नंबर पर है इसम अस्माए इशारात। तो इसमें गैर मुतमक्किन की दूसरी किस्म अस्माए इशारात है। इसमें इशारा, अस्मा इशारात वो इसम जो किसी मखसूस चीज की तरफ इशारा के लिए वजह किया गया हो। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मौलवी साहब? मुशारुन मुशार इलैह। मुशारुल इलैह। अच्छा, इसमें इशारा की इब्तिदान दो किस्म हैं। नंबर एक करीब, नंबर दो बाइद। फिर इनमें से हर एक की दो किस्म हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। फिर इनमें से हर एक की तीन तीन किस्में हैं, वाहिद मुजक्कर, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। तो करीब का होगा तो वो मुजक्कर का होगा या मुअन्नस का होगा, और वाहिद होगा या तस्निया या जमा होगा। बाइद का होगा तो वो भी मुजक्कर का होगा या मुअन्नस का, और वाहिद का होगा तस्निया या जमा का। तो ये याद रखें। इसमें इशारात तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन से अल्फाज उनके लिए आते हैं। हाजा, हाजान, हाजाइन, हाउलाए, उलाए, जाले का, जाने का, जैने का, उलाए का। और हाज ही, हाताने, हातैन, हाउलाए, उलाए, तिल का, ताने का, तैने का, उलाए का। तो ये अस्माए इशारात के अल्फाज है। सब लोगों को उम्मीद है कि याद होंगे, सब लोगों को पता होगा। अच्छा, इसमें इशारा की हम तरकीब कैसे करेंगे? अगर हम उसकी तरकीब करना चाहेंगे, हर हर लफ्ज की तहकीक को तरकीब कहते हैं। हर हर किसी भी जुमले में तमाम अल्फाज के तहकीक को, तमाम अल्फाज की हैसियत वाज़ेह करने को, हैसियत बनाने को क्या कहते हैं? तरकीब कहते हैं। एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाने को तरकीब कहते हैं।
अगर इसमें इशारा के बाद ऐसा इसम हो जो मुअर्रफ बिल्लाम हो तो इसमें इशारा मौसूफ होगा और मुअर्रफ बिल्लाम सिफत बनेगा। ये मशहूर तरकीब है। जैसे हाजर रजुल काइमुन, इसकी तरकीब कैसे करेंगे इस कायदे के मुताबिक? कोई साथी बोले। हाजा हाजा इसमें इसमें इशारा, इशारा मुबतदा, रजुलु। हाजा जी इसमें बताए इशारा पहले। क्या बनेगा? मौसूफ। मौसूफ। मुबतदा अभी मैंने बताया कि इसमें इशारा फिर के बाद मौसूफ। अगर मौसूफ मुअर्रफ मौसूफ। बिल्लाम हो यानी अलिफ लाम वाला लफ्ज हो तो इसमें इशारा मौसूफ होगा। और मुअर्रफ बिल्लाम लफ्ज जैसे हाजा हर रजुल पर अलिफ लाम है तो ये आपस में मौसूफ सिफत मिलकर ये मुब्तदा बनेगा और कायमुन इसकी खबर होगी। समझ आ गई बात? जी उस्ताद जी। जी। और अगर इसमें इशारा के बाद गैर मुअर्रफ बिल्लाम हो यानी नकरा हो तो इसमें इशारा मुब्तदा होगा और माबाद वाला नकरा खबर बनता है। जैसे हाजा रजुलन, अब हाजा डायरेक्ट मुब्तदा और रजुलन खबर, ये आदमी है, ये आदमी है, तो ये मुब्तदा खबर बनेंगे। ये इसमें इशारा की तरकीब जहन में याद रखे। सर जी, मुश्किल तरकीब है इसलिए मैंने लिखा हुआ है फायदा की शक्ल सर जी, में। बोले। हाजा रजुलन काइमुन, फिर इसकी किस तरह होगी? फिर रजुलन मौसूफ, काइमुन सिफत हाजा होगी। हाजा रजुलन कायमुन नहीं होता, हाजा रजुल कायमुन। हाजर रजुलो कायमुन होता है, हाजा रजुलन कायमुन नहीं होता। हाजर रजुलो कायमुन। ठीक है। जी सर। हाँ, ये अल्फाज हाजर रजुलो है, ये याद रखें। अच्छा, ये समझ आ गया? ये तरकीब ये जहन में रख के ऐसे जगह नोट कर दिया करे, हाईलाइट कर लिया करे। जब आएगी सामने तो फिर आप तशवीश में पड़ जाएंगे अगर आपको आता नहीं होगा या जहन में नहीं होगा ये कायदा। ये हम कब हमारे कवायद तकरीबन साथ साथ थोड़े बहुत लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी। इसमें ये हो गया हमारा ये तरतीब। उसके बाद अस्माए मौसूलात है। इसमें गैर मुतमक्किन की तीसरी किस्म अस्माए मौसूलात है। इसमें मौसूल का माना है मिला हुआ। इसमें मौसूल का माना क्या है? मिला हुआ। अस्माए मौसूल किसको कहे? अस्माए मौसूल कौन कौन से हैं? इसमें मौसूल ये है अल्लाजी, अल्लज़ी, अल्लज़ी, अल्लाजाने, अल्लज़ान। अल्लाजाइन, अल्लाजीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लताइन, अल्लाती, अल्लावाती। अस्माए मौसूल जो मुजक्कर के लिए है वो अल्लाजी वाहिद मुजक्कर के लिए, अल्लाजान अल्लाजाइन तस्नीया मुजक्कर के लिए, अल्लाजीना जमा मुजक्कर के लिए, और अल्लाती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लातान अल्लाताइन तस्नीया मुअन्नस के लिए, और अल्लाती अल्लावाती जमा मुअन्नस के लिए, और मा मन मुजक्कर मुअन्नस मुफरद तस्नीया जमा सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता एक फर्क होता है इसमें। वो फर्क ये है कि माँ अक्सर जविल अकुल यकीन यानी अक्लमंद मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है और मन गैर जविल अकुल यानी गैर अक्लमंद मखलूक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे जानवर वगैरह। जविल अकुल में इंसान, फरिश्ता और जिन्नात आते हैं और गैर जविल अकुल बाकी सब मखलूक गैर जविल अकुल है। अच्छा, और इसमें फाइल और इसमें मफऊल। इसमें फाइल और इसमें मफूल जब इन पर अलिफ लाम दाखिल हो, जैसे अज जारिब अल मजरूब, तो ये भी अस्माए मौसूलात में से शुमार होता है। और इसी तरह अय्युन व अय्यतुन और जू, ये भी अस्माए मौसूलात में से शुमार होते हैं। तो ये इसमें मौसूल की। अच्छा, यहां पर इसमें मौसूल के तरकीब जिक्र होने लगे हैं। समझ में आ रही है? ये जी उस्ताद जी। इस्तिलाही माना भी लिखा हुआ है। लुग़वी माना है
मिला हुआ। ये किसने क्या लगाया इस पर? इसमें मौसूल के इस्तिलाही माना वो इसम है जो सिला और आयद यानी जमीर के बगैर जुमला का जुज़े-ताम ना बन सके। जो इसमें मौसूल होता है वो जुमला का जुज़े-ताम नहीं बन सकता, वो जुमला नाकिस रहता है। जैसे हम कहें ना अल्लाजी, वो जो, अब जब तक आपने बताया ना हो कि वो जो किया, वो जो बाजार जाता है, वो जो इल्म हासिल करता है, वो जो काना कर रहा है, तब जाके समझ में आएगा। समझ आ रही है बात? जी उस्ताद जी। हाँ। अब याद रखें यहां पर इसमें मौसूल की तरकीब के जब इसम मुजाफ हो जमीर की तरफ और उसके बाद इसमें मौसूल आ जाए तो मुजाफ मुजाफिले मिलकर मौसूफ और इसमें मौसूल माबाद से मिलकर सिफत बनता है। ये इसकी तरकीब है, ये याद रखें। क्या कहा मौलवी साहब? जब इसमें मुजाफ हो और जमीर की तरफ और उसके नहीं, बाद जब इसमें इसम मौसूल आ मुजाफ जाए। हो, इसमें मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है जब इसम मुजाफ हो जमीर की तरफ, कोई इसम हो वो मुजाफ हो जमीर की तरफ और उसके बाद इसमें मौसूल आ जाए तो मुजाफ मुजाफिले मिलकर मौसूफ बनते हैं। क्या बनते हैं? मौसूफ। और इसमें अच्छा। मौसूल अपने मबाद से मिलकर यानी सिला से मिलकर वो फिर सिफत बनेगा। क्या बनेगा मौलवी साहब? सिफत उस्ताद जी। बनेगा। सिफत। अब उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम की कोई तरकीब कर सकता है? कर ले तरकीब। जी उस्ताद जी। उज़कुरू फेल, इसमें अंत जमीर फाइल, नेअमती मुजाफ, या जमीर मुतकल्लिम की मुजाफ इले, अल्लती इसमें मौसूला, अनआमतु फेल, तू जमीर फाइल, अला हरफ जर, कुम जमीर मजरूर। अच्छा, जार ये याद मजरूर रखें, में निअमती मैंने बताया कि इसमें मौसूल से पहले अगर मुजाफ जी मुजाफिले हो तो वो क्या बनते हैं? मौसूफ। अब नेमती मौसूफ। जी मुजाफ, नेमत मुजाफ या जमीर मुजाफिले, मुजाफ जी मुजाफिले मिलकर ये मौसूफ बनेगा। जी उस्ताद समझ जी। आ रही है? और अल्लती इसमें जी मौसूल है और अनअम तो अलैकुम ये पूरा जुमला सिला, मौसूल सिला मिलकर ये फिर इसके लिए सिफत बनेगा जी नेमती मौसूफ के लिए। ठीक है? जी उस्ताद जी। हाँ। जी अच्छा, फिल मुजारे पर जो माँ दाखिल होते हैं ना, ये इस पर रेड कलर का लाइन लग गया, पता नहीं ये कैसे लग गया। ये वाला फिक्र मैं समझाना चाहता था। ये उस्ताद जी किसी साथी से गलती होगी। तो वो फिर साथी मुजारे खत्म मैं नहीं उस्ताद कर जी सकता? क्यों करता है इस तरह? कर। किससे लगे ये खत्म करे ना ताकि आपको नजर आ जाए। या एक पेंसिल बनी हुई है ना, पेंसिल पे क्लिक करेंगे ना, उसमें आ जाएंगे ये ऑप्शन, जिस साथी ने भी किया है ना। हाँ, वही जिस पेंसिल साथ, इसके, हाँ, जिस पेंसिल को साथ, दबाएं। ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। मुझे तो जुबानी याद है, स्क्रीन में फिर कल जब आप देखेंगे तो आसानी रहेगी। इसके अंदर एक ऑप्शन है बैक जाने का और आगे जाने का, इस तरह उसमें दबाएंगे तो फिर ये हट जाएगा, जिस साथी ने भी किया। जी, कायदा और ज़ाब्ता यह है कि फिल मुजारे पर जो माँ दाखिल होती है ना, फिल मुजारे पर, फिल मुजारे पर अगर माँ दाखिल होना, वो तकरीबन 98% इसमें मौसूल की माँ होती है। इस बस ये समझाना चाहता था। जैसे आलमो मा ला तालमून, आलमो मा ला तालमून, तो वो माए नफी नहीं होगा बल्कि माए मौसूला होगा। बस इतना समझाना चाहता था। ये कायदा और ज़ाब्ता जहन में रखें। ठीक है जी? जी उस्ताद जी। ये मश्क से आते हैं। आप हजरात मश्क हल भी नहीं करते, मुझे मेरे साथ शार भी नहीं करते। आपके साथ बेहतरीन मौका है, मैं कई घंटे मुताला करने के बाद आपके सामने बैठता हूं और आप लोग बगैर मुताले के आ जाते हो। इसी वजह से फिर आपको अजनबी लगता है सबक। मैं बुनियादी चीजें पढ़ाना चाहता हूं
पूरा साल आप पढ़ चुके हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर सही पढ़ा हो। यहाँ जो पढ़ने की जरूरत है वो उस चीज की है कि आप लोग बुनियादी चीजें समझ लें और फायदा उठाए। ऐसे असातिज़ा और ऐसे पढ़ाने वाले बहुत कम मिलते हैं जो खुद भी उनको समझ आ रहा हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आजकल तो सामने शुरुआत और किताबें और कापियां रख के पढ़ाते हैं, जो सामने आ जाते हैं पढ़ा देते हैं। हमारे तो जो उस वक्त दिल में आ जाता है बस वही पढ़ाना होता है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से।